Very good in imparting professional education. That is hard skills to our students. But as a technical education system, as an institute, we were completely missing out on the soft skill part, and particularly value-driven soft skills. And during my student days also, I found that in my at that time engineering course was 5 years. In my 5 years of student life, my growth as a person was minimal. I may have learned some hard skills, professional skills, but as person I didn't grow at all. Rather, it was deterioration at some scale. So when I joined this profession, this question always troubles me: how to give our students a holistic, comprehensive education? What is lacking in our education? And I was searching for different solutions. So I tried several things. As faculty member, me and Sanyal sir were always active in providing our students some sort of holistic approach to education, which can transform them into better human beings. We tried sports, we tried extracurricular activity, we tried yoga, everything. But what we observed, our experience was that these things can help up to a certain extent, but they are not comprehensive. Until unless we change the thinking process of individual, permanent transformation won't occur. Fortunately, I came into this thing contact with this philosophy, which is coexistence-based philosophy of Madhya Darshan, promulgated by Sri A. Nagaraj from Amarkantak. So I was told by one of my friends who was serving at IIT as assistant professor that you should attend this workshop. That workshop was being delivered by Professor Ganesh Pagadia, who was passed out from IIT Kanpur and who was professor at HPTI Kanpur at that time. And when I attended that workshop, that was based on Jivan Vidya only, I had a personal transformational experience. This was 7 days workshop, when I went through it, it completely changed the way I was thinking over various things. I was taking decisions. Complete transformation was there. Before that, I was always pointing fingers in the system, in the society, in the family and all. First time, I was forced to introspect, forced to look within me, and I find that there are problems with me. That is why I see problem in family, the problem in society and all. And there are solutions everywhere. So this workshop actually empowered me to live better. And I was benefited a lot as an individual, as a human being, as a family person, as a family member, as a society member of society. When I attended these couple of more workshops, then I thought that this is the solution which can add to what we are teaching our students. It perfectly complements the existing system of education, and if we are able to provide our students the contents of this workshop, then they will be changed. Fortunately, what happened, countrywide also this thinking was going on that there is severe limitations with our present system of education. And under that BJP government was there, and under the leadership of then Honorable Minister Shri Murli Manohar Joshi ji, Government of India started emphasizing on need for inculcation of value education in all structures, all levels of education. And under that initiative, they started a National Center for Resource Center for Value Education in Engineering at IIT Delhi. And at that time, IIT Delhi professors, couple of IIT Delhi professors came to this institute regarding this thing, that how to inculcate these value system in our current curricula, current academic history. And we had a discussion with that. So a lot of academicians were invited to that workshop, and conclusion was that the need is there definitely, and our present education system need to be value oriented, but how it is to be done, nobody knew, nobody had the answer. Then I proposed in that workshop that I have this thing, exposure to this philosophy, and let me just experiment with this with my students. At that time, Dr. Rajesh Pathak was principal of this institute. At that time, it was GEC Rifles. It was around 99-2000 period was that. So I requested him, sir, from each department we take students who are problem creating students. At that time, discipline was not like today. That time, discipline used to run very high. And a lot of strikes and lot of disciplinary actions, etc. Students' part, time was different at that time.
So we will request faculty members from each department to nominate some student which they think that these are not, they cannot be improved upon. So, and for these students we conducted a seminar on permanent success. And Mr. Som Tyagi was kind enough to deliver that seminar, and that seminar was for 1 hour. When we started that seminar, around 50-60 students were there. This seminar went on for 3 hours because everybody had so many questions on this thing, and so explained to their satisfaction the answer. Then we asked them to register for a 7-day workshop, which was to be held at some other place, not in this institute. So readily all students registered, but we had this 30 students capacity to. We conducted the first workshop on this philosophy at the nearby place, which is known as Abhyuday Sansthan Achoti. And when this 7-day workshop was complete, then we requested all the head of department, faculty members, Bindal sir, to just listen to the experience sharing by students. And in that workshop, actually, when in that experience sharing, many students wept. They were so overcome with emotions that transformation they could feel in themselves, that they wept, and they said that this thing should be made compulsory. We can't leave this type of education to chance. Should be made compulsory part of curricula, and every student must go through this thing. And this particular honest opinion on the workshop by students, heartfelt feedback, actually motivated our faculty members, our principal, Sanyal sir was also there, that we should do more experiment of this kind. And then we signed, as institute, we signed an MOU with Abhyuday Sansthan Achoti to conduct every week a workshop for our students. So every week we used to send a group of our students for this workshop. And the results were like very transformative. Indisciplined situation, irresponsibility amongst the students completely stopped. Then we also conducted workshop for our faculty members, also staff also. Other engineering colleges in Chhattisgarh also we conducted workshop, this thing, and results were very encouraging. And this went on till 2007. Regular workshop was conducted. Then Chhattisgarh Technical University came up. They also included this in their compulsory curricular education course. And this has been going on, but later on, because of curricular pressure and this thing, we could not continue regular this thing, because sending a student for 7 days from a particular class, that much time was not there semester system. So then we started doing the informal workshops. But what we did during that we included this thing in our syllabus. So we are one of the, you can say, pioneers in technical education spectrum who offer this value education course as a compulsory course, core course to our first year. So earlier it was in third semester, second year. Now we are offering it in first year in new choice-based credit system. And because of this, basically, if you look at the kind of cases which are coming to us regarding depression or suicidal tendencies or indiscipline, etc., the students who have gone through these workshops, they are not part of that. So that is a direct feedback from that workshop which we are giving. Personally, Sanyal sir has gone through this workshop, I have gone through this. It is really transformative workshop because it addresses the core of your thinking. So once you modify your thinking, then this thing. At that time, Kalam sir was our honorable president. So when he came to know about this type of initiative at NIT Raipur, he decided to come to NIT Raipur to interact with these students. He was very much interested. Then in November 2006, our honorable president came to NIT Raipur. He interacted with the students, and he was very much interested. That year, next year, in his Independence Day speech, from this thing, एक रात पहले जो करते हैं वो अपने ऑफिस से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूटर, उसमें ही मेंशन अबाउट दिस थिंग. देन देयर वाज अ नेशनल वर्कशॉप एट आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर ऑर्गेनाइज्ड दिस नेशनल वर्कशॉप इन इवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूएशन इंजीनियरिंग. NIT Raipur was given responsibility of getting out a publication on that workshop. We published that this thing. There also honorable President Kalam Saab mentioned about experiments in NIT Raipur and success we are having. So since then this has been continuing as a compulsory course, but there is always opportunity to further improve on it because this is our industry. If you ask me that during my 25 years of education career, what I have contributed, so with lot of humility but simultaneously with lot of pride also, I can say that this is my contribution, that I have exposed this institute to value education.
and which was earlier considered to be impossible in formal education system. We can't teach values. Values are to be imbibed from environment. But we could prove that values can be taught to our students in classroom setting, and it is effective also. So this has been a journey for us. I wanted to just give you a brief that how we have arrived to this situation. And under Sanjal's leadership, I must congratulate him. Every year he is taking this pain to organize this for our staff members. So this is how this journey has taken place. Thank you, Vajpayee sir, for these kind words, and I hope we adopt the things that Vajpayee sir just said, so that we can improve in our life and improve our thinking about our life, how we should live that in a more positive sense. Now I request Dr. Hina Chawda, the speaker of this seminar, this workshop, to Good morning, sir. to kindly let us brief the entire workshop at hand. Hina. Good morning, sir. Thank you. Thank you and thank you very much, डायरेक्टर सर, कि आप फीडबैक सेशन में आप आ पाए, और थैंक यू संजय सर का कि उन्होंने इतना अच्छा सेशन का आयोजन किया है, और आप सभी डॉक्टर समीर वाजपेयी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ह्यूमैनिटीज़ जया मैडम और ऑल फैकल्टी मेंबर्स, आप सबका स्वागत है और धन्यवाद कि आप सभी अपना समय निकाल कर यहाँ आए हैं। मैंने जो अभी हम लोग जो साथ में बैठ कर के जो हम लोगों ने चर्चाएं की, मैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि हम लोगों ने किस टॉपिक पर बात की है, क्या क्या मुद्दे हमने कवर किए। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में मैंने क्लास का समरी रखा है। बातें तो बहुत सारी हुई है, लेकिन उसके पॉइंट्स मैं रखूँगी, और समीर वाजपेयी सर ने जो जर्नी रखी है उसका भी कुछ ग्लिम्स फोटोग्राफ्स रखे हैं मैंने, वो भी मैं फटाफट दिखाऊंगी, जिससे एक माइंड में फिर से एक रिवाइज हो जाए कि 2002 या 2003 से कैसे शुरू हुआ है और आज कहाँ तक पहुँचा है। तो वो सारा एक मेमोरी भी मैंने उसको रखा है इसमें, तो वो मैं आगे। तो इसमें हम लोग जो है अभी 10 या 11 डेज हम लोगों ने जो बातचीत की, उसमें हमारा जो टॉपिक था लगभग ये जो वर्कशॉप है वो हम कैसे हारमोनियस के साथ में, हैप्पीनेस के साथ में जी पाएँ उसके लिए था, है ना। अभी हम सभी देखते हैं कि जैसे सर ने कहा कि हमारे वर्क लाइफ में फैमिली लाइफ और वर्क प्लेस लाइफ कैसे बैलेंस कर पाएँ, तो वो तो होगा ही इसके साथ साथ, लेकिन हमने जो इस क्लास में जो अध्ययन किया, हमने जो बातचीत की, वो लगभग यही था कि हम खुद को कैसे जानें, क्योंकि प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग को है। तो इसलिए उससे टॉपिक जो रिलेटेड है वो उसके आधार पर मैं फटाफट बोलते जाती हूँ समय के अभाव के कारण। व्हाट इज कोएग्जिस्टेंस एंड लिविंग, 4 ऑर्डर, माने हम लोगों ने यहाँ पर 4 ऑर्डर यानी एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर और ह्यूमन बीइंग, पूरे यूनिवर्स को अगर हम देखते हैं तो 4 ऑर्डर है। ये 4 ऑर्डर में से 3 ऑर्डर जो है वो बैलेंस है, हार्मोनियस में है, एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर। केवल ह्यूमन बीइंग है जो अपने, है ना, माने कहना चाहिए कि अपने निश्चित आचरण के साथ नहीं रहता है, वो ठीक से नहीं रहता, उनके कारण फैमिली वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं। तो उस पर हमने बातचीत की डिटेलिंग में। फिर ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग पर हमने चर्चा की, इसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज इन लाइफ। तो हमारे लाइफ में 3 चीजें हैं जो हमारे लिए कंपलसरी है सभी ह्यूमन बीइंग के लिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी। ये 3 चीज के बिना हम लाइफ को नहीं जी सकते हैं। तो ये 3 में से हम ये देखते हैं कि फिजिकल फैसिलिटी यानी सुविधा, संबंध और समझ। तो फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी पर हम सभी काम कर रहे हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप और जो आपका राइट अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी मिसिंग है और हमारे बीच में भी। तो हमारी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में हम जो भी प्रॉब्लम देखते हैं, उसका जो मेन प्रॉब्लम का जो रीजन है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना, मिसकम्युनिकेशन और एक अनहेल्दी रिलेशनशिप, है ना। तो फिजिकल फैसिलिटी हमारे पास बढ़ जाती है, लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप हेल्दी नहीं हो पाने के कारण हम प्रॉब्लम में रहते हैं। तो इस पर हमने डिस्कशन किया कि ये कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, कैसे हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो और हम कैसे फैसिलिटीज का सदुपयोग कर पाएँ। अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स सिस्टम, इसको भी हमारा हम लोग जनरली हमारा रिलेशन जो है केवल मैं और मेरा परिवार तक ही हम देख पाते हैं, मैं और मेरी फैमिली।
लेकिन हमने इस क्लास में हमने देखा कि हमारा जो रिलेशन है वो केवल मेरे तक नहीं है ना, माने सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी, नेचर और एग्जिस्टेंस, हमारे यूनिवर्स का कनेक्शन कैसे है, उस पर हमने एक बात की। यूनिवर्सल ह्यूमन गोल, अभी हमारे बहुत छोटे छोटे गोल हैं कि मैं कॉलेज में टॉप कर लूँ या अच्छे प्लेस में अच्छे पैकेज का जॉब मिल जाए या एक अच्छी मैरिज पार्टनर मिल जाए, तो अभी हमारे बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स गोल हैं, लेकिन एक अल्टीमेट जो गोल है सभी हर ह्यूमन बीइंग का, उस पर हमने बात की। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, हम लोग लगभग मटेरियलिस्टिक लाइफ को सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मान लेते हैं, तो उसको हमने लेकर के टेम्पररी वर्सेस कंटिन्यू हैप्पीनेस पे हमने डिस्कशन किया। व्हाट आर रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम के रूट कॉज कौन कौन से हैं उस पर हमने डिस्कस किया। इंटेंशन और डाउट और ब्लेम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, उस पर हमने बात की कि कैसे हम किसी के इंटेंशन पर डाउट करते हैं और ब्लेम करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं, उस पर हमने बात की। एंगर वर्सेस कॉल्डेड, हमने बात की कि एंगर का मेन रीजन क्या रहता है और ये कैसे ठीक होगा, है ना, इस पर हमने काफी सारी बात की। फियर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अभी हमको 4 टाइप के फियर हैं, वो कौन कौन से फियर हैं और वो कैसे ठीक होगा, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा, उस पर हमने बात की। कर्म का सिद्धांत, हम लोग जो भी काम करते हैं हमको लगता है कि हमको कोई देख नहीं रहा है, हमको कोई सुन नहीं रहा है, हम अपनी मनमर्जी के मालिक हैं, हम अपने मनमानी से जीते हैं, तो उसमें हमने कर्म एवं फल के सिद्धांत पर हमने चर्चा की। मानव 3 प्रकार से सुखी होने का प्रयास करता है, इंटरेस्ट ओरिएंटेड, वैल्यू ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड। इसमें लगभग हमारा इंटरेस्ट ओरिएंटेड में हमारा लाइफ चला जाता है और हमारा वैल्यू और गोल जो है वो मिसिंग है, वो कैसे डेवलप होगा, उस पर हमने बात की। हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कशन किया, क्या होता है ह्यूमन बीइंग, सेल्फ प्लस बॉडी, उनकी नीड क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ, और कौन कौन से रूट कॉज हैं जो हमारे अनहैप्पीनेस के लिए रीजन है, और एक्सेप्टेशन, हम अपेक्षा करें या ना करें, यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू फॉर हार्मनी, हमने ह्यूमन वैल्यूज पर डिस्कशन किया। तो हमने जो है कोएग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग को जब हम देखने जाते हैं, तो जब हम यूनिवर्स में हम पूरे को देखते हैं, तो सोलर सिस्टम और हम ये पूरी धरती, तो इसमें हम लोग कहीं भी अपने आप को कहीं कनेक्ट नहीं कर पाते, हम यहाँ पर होते ही नहीं हैं, तो ये हम कैसे यहाँ तक हम अपने आप को जोड़ पाए, तो इसके लिए हमको समझना होगा कि हमारा यूनिवर्स से रिलेशन है कि नहीं। तो इसके लिए हमने देखा कि पूरे अर्थ में 4 ऑर्डर हैं, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर, तो इसमें से ये 3 ऑर्डर जो है वो हार्मोनियस के साथ है, केवल ह्यूमन बीइंग जो है वो ठीक से नहीं चल पा रहा है ना। तो ये हमने देखा, और उसके बाद में हमने देखा कि ये तीनों ऑर्डर रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमन ऑर्डर इनके बिना एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग के बिना एग्जिस्ट करता है। इस पर हमने काफी डिटेल में बात की, और ये चारों ऑर्डर जो हैं ये बैलेंस हो पाए, इसके लिए कहना चाहिए बैलेंस तो पहले से था ही, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग के इंटरफेयर के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशन हम देख रहे हैं, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी तभी हम इन तीनों के साथ में ठीक से चल पाएंगे, इस पर हमने बात की। तो कहने का मतलब यहाँ पर केवल ह्यूमन ऑर्डर गड़बड़ है, बाकी तीनों ऑर्डर जो है वो ठीक ही हैं। हम अगर ठीक हो जाएंगे तो ये तीनों ऑर्डर के साथ में हम ठीक से चल पाएंगे, तो हमारा ही डेवलपमेंट जरूरी है। हमको ऐसा लगता है कि हम डेवलप्ड हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट किया है, मेंटल डेवलपमेंट तो नहीं किया है। तो हमने इस पर बात की। हमने देखा कि हमारे लाइफ में जो अंडरस्टैंडिंग और ये 3 जो पॉइंट है, 3 में से केवल हम लोग केवल फैसिलिटी के लिए मनी माइंडेड जीते हैं, मीन्स एनिमल कॉन्शियसनेस है हमारा, है ना। हमको क्या करना है, हमारे अंदर में राइट अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करना है, जिससे कि रिलेशनशिप हेल्दी होगा, हम फिजिकल फैसिलिटी का सदुपयोग कर पाएंगे, तो नेचर बैलेंस होगा और म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा, तो फैमिली में भी हार्मनी होगी, उसको हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि हम एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाए और हमारे अंदर में अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप हेल्दी हो जाए, तो हम वो नेचर के साथ हम जस्टिस कर पाएंगे, हम हार्मोनियस के साथ में हम नेचर के साथ काम कर पाएंगे। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया। तो इसके लिए हार्मनी, सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी या नेचर के को लेकर के हमने काफ़ी सारे फियर को लेकर के हमने 4 तरह के फियर ह्यूमन लाइफ में होते हैं, वो फियर पे हमने डिस्कशन किया, और ये कैसे ठीक होगा इस पर हमने बात की। फियर के कारण
हम जितना ज़्यादा हम डर में रहते हैं उतना ज़्यादा हम कलेक्शन करते हैं, उतना ज़्यादा हम नेचर और ह्यूमन बीइंग का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, शोषण करते हैं। तो इसका विरोध होता है और फिर ये धीरे से युद्ध तक बात चली जाती है, क्योंकि गलती करते हैं तो इसका विरोध होता है। इस पर हमने बात की। कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, इस पर हमने बात की, है ना। हैप्पीनेस पर हमने देखा कि अगर हम सामने वाले को समझ पाते हैं तो वो कैसे समझेंगे जिससे कि हैप्पीनेस मिलेगा। हम नहीं समझ पाते हैं तो हम अनहैप्पी होते हैं। उस पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। हमारा जो अल्टीमेट जो पर्पस है वो कंटिन्यू हैप्पीनेस है, लेकिन हम लगभग टेम्पररी हैप्पीनेस के आसपास रह जाते हैं। ह्यूमन वैल्यूज पर हमने बात की। तो हमारी ह्यूमन वैल्यूज में दो पर्सन के आपस में हेल्दी बॉन्ड के लिए जो है ट्रस्ट उनका फाउंडेशन वैल्यू है। और ट्रस्ट का जो है वो कैसे आएगा, सर्टेन बिहेवियर। तो ये सर्टेनिटी कैसे आएगी, हमारा मानवीय आचरण, मानवीय व्यवहार, सर्टेन कंडक्ट और बिहेवियर कैसे डेवलप होगा, इस पर हमने बात की। और रेस्पेक्ट का मतलब हम लोग कुछ और ही समझते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि राइट इवैल्यूएशन कर पाना बराबर रेस्पेक्ट और रॉन्ग इवैल्यूएशन करना बराबर डिसरेस्पेक्ट। तीन गलती हम करते हैं, ओवर इवैल्यूएशन, अंडर इवैल्यूएशन, अदरवाइज इवैल्यूएशन। ये तीन गलती के कारण जो है ह्यूमन अनहैप्पी रहता है। और इस तरह से कैसे रिलेशनशिप खराब होते हैं, कैसे वो ठीक होगा, इस पर हमने बात की। और ह्यूमन वैल्यूज जितने भी हैं वो सारे वैल्यूज पर हमने डिस्कशन किया। ह्यूमन गोल जो है वो केवल मेरा और मेरी फैमिली तक का लिमिट नहीं होता है। ह्यूमन गोल में इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी या नेचर लेवल पर हम ह्यूमन गोल की हम बात कर पाएंगे। उस पर हमने बात की। डिप्रेशन के रीजन क्या होते हैं, कैसे डेवलप होता है और ये कैसे ठीक होगा, और मेरे अनहैप्पीनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उस पर हमने बात की। और हमारा जो हमारे लाइफ में हम लोग तीन तरह की लाइफ में होता है कि एक हमारा पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है, करेंट होता है। तो डिप्रेशन में ऐसा होता है कि ना तो हम फ्यूचर में है, ना हम पास्ट में है, ना करेंट में है। ये तीनों में नहीं है, मीन्स सुसाइडल थॉट बढ़ेगा और वो सुसाइड करेगा। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये कैसे ठीक होगा, इस पर हमने बात की। तो हम लगभग हम लोग बॉडी बेस्ड जी रहे हैं, तो इसका मतलब हम इंटरेस्ट ओरिएंटेड जी रहे हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू ओरिएंटेड मीन्स सोसाइटी का भी ख्याल रख सके, एनवायरनमेंट का भी ख्याल रख सके, यहाँ हम कैसे शिफ्ट हो, इस पर हमने बात की। इसके पूरे डिटेल्स पर हमने एग्जांपल लेकर के देखा कि बॉडी बेस्ड जीना, फीलिंग बेस्ड जीना या गोल बेस्ड, उस पर हमने बात की। कुछ सूत्र पे हमने चर्चाएं की। यदि गलती है तो समझ नहीं, समझ है तो गलती नहीं। मानव गलती करने का अधिकार लेकर सही करने का अवसर व साधन लेकर जन्म लेता है। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है ना। मनुष्य जो है संबंध को नहीं समझ पाने के कारण दुखी होता है, न कि वस्तु वाहन आदि की कमी से। वैसे हमने कई सूत्रों पर चर्चा की। हमने एंगर मैनेजमेंट पर भी बात की। तो अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है ना। इस तरह से हमने कई सूत्रों पे चर्चा की। और उसके बाद में मैं थोड़ा सा अपने कॉलेज में जो वैल्यू एजुकेशन चल रहा है उसकी थोड़ी सी जर्नी का ग्लिम्स दिखाना चाह रही हूँ। और वो समीर सर ने काफ़ी सारी पॉइंट्स बताया है, उन्हीं का है आगे। तो ये सही है कि इसके फोटोग्राफ्स भी हैं हमारे पास, पुराना ही ओरिजिनल क्लिप है ये। तो जब 2002 में जो है वो गौड़ सर जो है IIT दिल्ली के, वो और गणेश बागड़िया सर IIT कानपुर से, गौड़ सर हैं, इन लोगों का यहाँ पर मीटिंग हुआ था। और ये यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन जो शुरुआत हुई है उसमें मैंने मुख्य भूमिका में मैंने सान्याल सर, समीर सर को अपने फ्रंट में मैंने हमेशा पाया है। और श्री वर्मा सर का भी काफ़ी हेल्प रहा है। और भी कॉलेज के फैकल्टी का सपोर्ट रहा होगा, बैक सपोर्ट, वो सान्याल सर, समीर सर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। और ये सोमदेव त्यागी सर, जिन्होंने NIT रायपुर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, और यहाँ अभ्युदय संस्थान छौटी के साथ में MOU साइन नवंबर 2003 में हुआ था। तब जो है यहाँ से NIT रायपुर से चलकर बच्चे जो हैं 20-22 किलोमीटर के डिस्टेंस में वहाँ जा करके वर्कशॉप अटेंड करते थे। 7 डेज का वहीं पर रहते थे। ये वहाँ का गेम्स है। और ये स्टूडेंट्स, ये भी ओरिजिनल पिक्चर है, यहीं के NIT रायपुर के CS ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं। ये उन्हीं लोगों से मुझे मिला है। तो ये वहाँ पर दिन भर वहाँ रहते थे और उनके वर्कशॉप होते थे, नाइट में उनका प्रेजेंटेशन होता था। ये उसका फोटो है, वहाँ के सारे फोटोग्राफ्स हैं। और ये यहाँ पर और भी अभी जो वर्कशॉप हो रहा है, ऐसे कई वर्कशॉप यहाँ हो चुके हैं, उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। और यहाँ पर जब ये वर्कशॉप चलता था तब बच्चे जब वापस यहाँ आते थे तो उनको जो है
उनके मन में जो कई डाउट्स रहते थे उनको सुनने के लिए एक काउंसलिंग सेल की स्थापना की गई, जहाँ पर जो भी वर्कशॉप से 7 डेज वर्कशॉप जिसको जीवन विद्या शिविर बोलते थे, वहाँ से जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनको कोई सुने, उनके और भी डाउट्स बाद में निकल रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक समाधान पक्ष काउंसलिंग सेल की स्थापना की गई, जिसमें जो है उनके क्वेश्चन सुने जाते थे। और ऐसे बच्चे जो उससे निकल करके बहुत गहराई में काम करना चाहते हैं, उनकी पूरी एक टीम बनी। तब हमने एक सेंटर फॉर एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज के नाम से एक ग्रुप बना, और वो लोग जो हैं वो उसकी डीप स्टडी करते थे। उसके भी फोटोग्राफ्स हैं। जो ये जो बच्चे हैं, ये वही सब बच्चे हैं जो उस समय एक ग्रुप बन गया था उनका, 2004-5-6 की बात है ये। तो उस समय जो है इनके साथ में सिद्ध मसूरी करके एक ट्रिप पर गए थे, वहाँ पर भी इससे रिलेटेड और भी 15 डेज का वर्कशॉप था, वो अटेंड किया था। और ये सभी बच्चे जब अब्दुल कलाम सर जो हैं वो जीवन विद्या के जो माने फाउंडर हैं, जो रिसर्चर हैं ए नागराज, उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। वो काफ़ी प्रभावित हुए थे, और उसके बाद में फिर उन्होंने NIT रायपुर और IIT दिल्ली जैसे स्थान पर वो गए, और इस तरह की चर्चा उन्होंने 15 अगस्त में भी उन्होंने जीवन विद्या नागराज जी एवं वैल्यू एजुकेशन पर उन्होंने 2-3 मिनट का शायद स्पीच था उनका। ये वीडियो अभी भी उपलब्ध है, और ये जितना भी जो ग्लिम्स दिखाने के सभी वीडियो अभी भी यूट्यूब में उपलब्ध हैं। नागराज जी के साथ बैठक में ये सोमदेव त्यागी सर थे, इसलिए वो क्या बातचीत हुई थी उनकी पूरी बातचीत उसमें रिकॉर्ड है। बच्चे जब उस समय थे तब उन्हीं बच्चों ने जो है समाधान के नाम से एक मैगजीन निकाली थी, जिसमें पूरी जर्नी को उन्होंने कवर किया था। उसके कुछ ग्लिम्स, और ये उन स्टूडेंट्स का नाम है जिनसे अब्दुल कलाम सर जो हैं उन्होंने पर्सनली बातचीत की थी। इसके कुछ ग्लिम्स हैं। फर्स्ट डायरेक्टर डॉक्टर D.S. बल सर भी थे उस समय। ये सब उस समय का पूरा रिपोर्ट है उस मैगजीन का, उस समय के सारे फोटोग्राफ्स हैं, और ये वो सारे स्टूडेंट हैं जो वर्कशॉप अटेंड करते थे, उनके फीडबैक हैं, ये पूरे मैगजीन में है। और ये IIT दिल्ली का फोटो है, जहाँ पर वो कन्वोकेशन में वहाँ पर उन्होंने वैल्यू एजुकेशन को एड्रेस किया था, और वहाँ पर 2007 में गए थे। ये गौड़ सर है जो यहाँ पर भी इसका शुरुआत करने में उनका बड़ा योगदान है। और ये गणेश बागड़िया सर है जो IIT कानपुर से पास आउट है, और शायद SBTI कानपुर में ये जॉब करते हैं। ये प्रदीप ये सांगल सर हैं जो IIT BHU में भी इनका हमारे डायरेक्टर थे। तब उन्होंने काफ़ी IIT हैदराबाद में ये डायरेक्टर थे, और प्लस यहाँ पर IIT BHU में जब डायरेक्टर थे तब उन्होंने जीवन विद्या पर काफ़ी सारे वर्कशॉप करवाए, और वहाँ पर जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी। और ये प्रदीप रामचंद्र IIT हैदराबाद के, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है अपने वहाँ क्षेत्र में हैदराबाद तरफ। इनकी पूरी डिटेल्स जो है ये यूट्यूब में या फिर आपकी वेबसाइट में उपलब्ध है। इन्होंने जो किया था उसके कुछ इनके पूरे रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं। इसकी कुछ पॉइंट्स मुझे कहीं मिल रहा था तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अभी वर्तमान में तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में 70 महाविद्यालय, 17 विश्वविद्यालय, 3000 महाविद्यालय, 5000 शिक्षकों द्वारा मूल्य शिक्षा दी जा रही है, 5 लाख तक के विद्यार्थी। तो ये इस तरह से ये तेलंगाना में इतने सारे, आंध्र प्रदेश में 17 महाविद्यालय, 17 विश्वविद्यालय, ये सब जगह पर इनका काफ़ी बहुत बड़ा योगदान जो है वो प्रदीप रामचंद्र सर का है। और ये अभी मेरे जो वैल्यू एजुकेशन में मैंने इनको डेक कमेटी में भी इनको शामिल किया है। मैंने जो भी सिलेबस से रिलेटेड अपडेट होते हैं, IIT BHU है, ये सारी लिस्ट है। काफ़ी सारी जगह पर ये काम चल रहा है। AICT में भी अभी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के नाम से, ह्यूमन वैल्यूज इन मध्यस्थ दर्शन के नाम से भी इन्होंने इसको चालू किया है। इसके पूरे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में चल रहा है इसका पूरा जो है मिल जाएगा। और ये ह्यूमन वैल्यूज इन मध्यस्थ दर्शन के नाम से भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई, उसके बाद उन्होंने जो है इस नाम से इनको एड्रेस किया है। और ये लगभग मेरे ख्याल से ऑल इंडिया के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में, एग्रीकल्चर कॉलेज में, सब जगह ये पढ़ाना कंपलसरी हुआ है, ऐसी मेरी जानकारी में आया है। क्योंकि जो गवर्नमेंट कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में जो सर मैडम है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी जो है ये 2011-12 से यहाँ पर भी चालू है। और ऑल इंडिया में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज में ये पढ़ाया जा रहा है, और इंजीनियरिंग कॉलेज में और भी कई जगह पर है।
રાજકોટ गुजरात और एलजे यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात में बहुत ज़बरदस्त अभी काफ़ी काम देखने में आ रहा है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद तो है ही, और पीएचडी वगैरह भी कराने का काम यहाँ पर हो रहा है मध्य दर्शन में। वैल्यू एजुकेशन एनआईटी रायपुर में वैल्यू एजुकेशन बेस्ड काउंसलिंग सेल है अभी, और ओपन इलेक्टिव में 6XM में भी पढ़ाया जा रहा है, फर्स्ट ईयर में भी दिया जा रहा है। इसकी कुछ सिलेबस है। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में हम लगभग पोस्टर बनवाते हैं इनसे, और शॉर्ट फिल्म ड्रामा प्ले करवाना, और भी काफ़ी चीज़ें। तो ये हमने काफ़ी सारे पोस्टर एग्जीबिशन करवाए, उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं, डायरेक्टर सर भी हैं साथ में। तो ये कुछ ग्लिम्स हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं। बच्चे पोस्टर बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब में डालते हैं। तो ये सभी तरह के टॉपिक रहते हैं। बच्चों के बीच में भी हम OMI पर डिस्कस करते हैं, ह्यूमन गोल पर डिस्कस करते हैं, हाउ टू ओवरकम एंगर, बॉडी डाइज सोल डज नॉट डाई, यानी हम आत्महत्या ना करें बच्चे, इसके लिए हम कैसे मोटिवेट कर पाएं कि वो आत्महत्या का निर्णय न ले। इसके लिए हम इस तरह की बातें बच्चों के बीच में करते हैं, जिससे वो एक्सेप्टेशन वर्सेस रियलिटी, ये सब टॉपिक पर क्लास में बच्चों से डिस्कस होता है। उनके पोस्टर बनवाए जाते हैं। पोस्टर बनवाने का पर्पस ये रहता है कि हमने जो पढ़ाया है वो एक क्रिएटिविटी में अगर आ जाए कि उसका पोस्टर बनाए या वो ड्रामा करे या शॉर्ट फिल्म बनाए, तो वो माइंड में रिवाइज करना पड़ता है कि मैडम ने जो पढ़ाया उस पर फिल्म बनाया है या उस पर पोस्टर बनाना है, तो वो रिवाइज हो जाता है। इसलिए इस तरह के काम मैं उनको देती हूँ क्लास में, जिससे वो बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर भी बनाते हैं। और इसमें हम कई उनके रहते में अभी करंट सिनारियो में जो इश्यूज हैं, ब्रेकअप इशू है, रिलेशनशिप इशू है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, मेंटल प्रेशर है ना, कई प्रकार के हैं, निगेटिव थॉट्स है, पीयर प्रेशर है, ये सारे टॉपिक हम उनके बीच में कवर करते हैं। और हैप्पीनेस का सोर्स बहुत अच्छे से समझ में आता है बच्चों को कि हाँ, हम जो दौड़ रहे हैं किसी पोजीशन के लिए, किसी पैसे के लिए, वो जो हैप्पीनेस हम चाह रहे हैं वो वहाँ से नहीं मिलेगा। ये हिंट अगर बच्चों तक चला जाता है तो काफ़ी बड़ा काम करता है, वो मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। ये मैंने ऐसा देखा है इनके बीच में। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन्वायरमेंट पर ये हमने ऑनलाइन क्लास के दौरान भी लिया है। ये शॉर्ट फिल्मों भी बनाते हैं बच्चे, तो शॉर्ट फिल्म के काफ़ी सारा है शॉर्ट फिल्म। इस पर मैंने एक वैल्यू एजुकेशन एनआईटी रायपुर के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है। उसमें लगभग अभी 250 के आसपास वीडियो अपलोड है, अभी और अपलोड होना बाकी है। तो काफ़ी सारे वीडियो हैं, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया बनाते हैं बच्चे। अपने एक छोटे से मोबाइल में कोई कैमरा नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन अपना दिमाग लगा कि हाँ ये असाइनमेंट है, मैडम ने बोला है बनाना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा बनाते हैं। और वो मेरे गाइडेंस में बनाते हैं। मैं कहती हूँ पहले तुम लोग स्क्रिप्ट लिख लो, फिर हम अपडेट कर देंगे। तो उसमें हम जहाँ जहाँ कुछ रहता है वो हम उसको गाइडेंस करते हैं। तो ये काफ़ी सारे उनके गेम्स हैं, ये आप लोग उस वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, मेंटल हेल्थ डे, ये सब पर हम बच्चों के बीच में हम बात करते हैं। ठीक, थैंक यू। इफ यू हैव थैंक यू मैम। काफ़ी डीप बताई मैडम ने, जो जर्नी जो हम नहीं जानते थे एक्चुअली, जो पीछे का चीज़ था, मैडम ने खूब अच्छी तरह से बताया। सो हाउ दिस थिंग्स is going on with us as well as the students of this institute, starting from the BTech students to PhD students, as well as staffs, faculty members and all the senior professors, faculties in this institute. How this thing can improve the life of every individual so that they can improve their surroundings, whoever is present in their surroundings. So with these things, actually what happens is that when we do a seminar, workshop or training program like this way, we get responses or feedback from the participants. So I may be requesting the participants of this workshop to share their experience related to this 10 hours program on this way towards happiness through coexistence. तो आप अपना अनुभव शेयर करें डायरेक्टर सर के साथ और हमारे सर के साथ। कोई भी आप बताएं। आप लोगों को कैसा लगा, क्या समझ में आया, हम लोगों ने जितने भी टॉपिक पर बात की वो आप लोग रखिए, तो एक सबको एक पता चल पाए कि आप लोगों ने कुछ सीखा भी है कि नहीं क्लास से, है ना, या समझ में नहीं आया, सब चला गया ऊपर से। तो थोड़ा आपका फीडबैक हम चाह रहे हैं, मुझे भी पता चले कि आप तक हमारी बात पहुंचती है कि नहीं। सिन्हा जी आप बताइए। इसलिए हम फीडबैक सेशन रखते हैं। सिन्हा जी आप चलो आप Good afternoon all, respected directors, Jodi Sanyal sir,
and our faculty members, my colleagues और मेरे seniors. ये जो 14 जून से 4 जुलाई तक का आज लास्ट सेशन है. ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चला जो वैल्यू एजुकेशन से, वैसे तो बहुत सारा टॉपिक पे मतलब चर्चाएं हुई है. उसमें से एक है मतलब जो मेरे को जो थोड़ा ठीक लगा कि हम दुख का कारण जैसे है हम लोगों का वो है एक्चुअली भय. दुख के कारण क्या है उसमें होता है मान, मतलब हमारा जो मान है वो ना चला जाए. सम्मान कम होने का भय जो है, जो प्रतिष्ठा है वो भय मतलब ना चला जाए. वो उसके कारण, उस भय के कारण से हम लोग दुखी हो जाते हैं. दूसरा है पद चले जाने का. कहीं हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर देते हैं कुछ, तो हमारा पद जो है वो ना चला जाए. क्षण है मतलब धन कम होने का भय, प्राण जाने का भय. ये टॉपिक मुझे अच्छा लगा. और वैसे तो बहुत सारे अच्छे टॉपिक रहा है, पर ये मतलब हम अपने दैनिक जीवन में उसको कितना अनुसरण करते हैं वो मेन है. और मैं चाहूँगा कि ये धीरे धीरे हम ऐसे मतलब इन पर हम इम्प्लीमेंट करें तो वाकई में हमारा जो जीवन है वो अच्छा हो सकता है, सुंदर हो सकता है. और जैसे कि वाजपेयी सर ने बताया कि हम जनरली जो है ना हम दूसरों से कंपेयर करते हैं. हमको स्वयं को आकलन करना चाहिए. हम स्वयं को आकलन न करके हम दूसरों को कंपेयर करते हैं. इसके कारण से भी हम दुखी रहते हैं कि यार नहीं उनके पास बंगला है, उनके पास ये है. पर भाई वो वहाँ तक पहुँचे हैं. हमको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको अपने को जानना पड़ेगा पहले कि हम वाकई में रियलिटी में हम वहाँ तक जा पाएंगे या नहीं. ओके, थैंक यू. बबीता शर्मा. कहाँ पे गलत हो रही हूँ कि मैं उनसे हमेशा हेल्प लेने आती हूँ कि मैम मेरे को ये प्रॉब्लम है मेरे को अपने बच्चे के साथ में. तो वो चीज़ तो मैं यहाँ समझी कि कहाँ पे मुझे अपने आप को सुधार लाना है और कैसे मेरे को अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, कैसे मुझे सामने वाले को समझना है. और यही सब ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैम का हेल्प भी बहुत अच्छा लगा. दशरथ लाल. हाँ. सर, ये अपने को इस जीवन में किस प्रकार से हैप्पीनेस होना चाहिए इसके बारे में मैडम ने अच्छी बातें बताई हैं. एक्चुअली जी आपको कैसा लगा ये? बढ़िया. अच्छा लगा. इसका कुछ फायदा होगा ऐसा लगा? फायदा होगा. तो होगा सर. पहले की स्थिति में और अभी की स्थिति में परिवर्तन पा रहे हैं आप? हाँ, बहुत ठीक है. This time is actually. Okay. So we'd love to hear feedback from other participants, but we have some limitation time. So now I request Sanyal sir to kindly brief this. Sorry, Director sir to kindly provide his views on this. Thank you. Sorry, sir. Pardon. Also, let me thank Dr. Sanya, Samir Bhai, and Madam Anna Chawla for organizing this wonderful workshop on way toward happiness through coexistential living. In fact, value education, as you rightly said, is very important in our day-to-day life. As a teacher, we are responsible for development of the student community and all that. And if we are not fit, we are not happy, our mind is not
stress-free, then I don't think we'll be doing our job properly. So I think the way you presented the topics that we have covered in this workshop on Wait for Happiness is really wonderful. I request you to conduct this on a regular basis to almost every faculty of NIT Raipur, non-faculty of NIT Raipur, every student of NIT Raipur, and outside NIT also they should get exposed to this. Probably as you are going and telling, you will improve your based on the experience and feedback. I think this is become a regular event. You can conduct a workshop. You can also do this for industries people also. This is becoming something which the government of India has realized, and the National Education Policy 2020, the importance of holistic value education, human values, ethics has been clearly laid down. And we as an individual, as I got to the feedback, that if we all, if our mindset changes, we have a positive outlook, definitely our performance improves. And when our performance improves, we will be more happy and we will bring these more effectively. See, we are living in a society, we should not be bothered about unnecessarily stress, strain, and then conflicts. I think you have brought out very nice topics. In fact, very importantly, teachers' personality and value system will have an impact on students' minds and hearts. So whatever we do, whatever we say, sometimes we may affect the career of the student. And in fact, I've seen instances where because of the attitude of the teachers, students have committed suicide, which is not a correct thing. And I think the way you are conducting the workshops, going to different places, our students creating videos is something remarkable, and their experience is very, very good. And it is also responsibility as teachers in the society, especially for higher education institutions like NIT Raipur, to instill civic awareness, patriotism, and discipline in the students. And this is one way of doing it, and I am very happy that the participation has been quite large, and department faculty are very enthusiastically participating. So we know that teacher is a central figure in the higher education, and our role is very, very important, and so we should instill a balanced viewpoint of students. So a teacher, as a teacher, for us it's a lifelong learning. So whatever you think, we should learn through our experience, and experiential learning is very important. What you say, we try to map it to our day-to-day activities and see how we can improve, so that everybody is happy in the society. We want all of us to be happy and healthy, so that is something very, very important. And as a teacher, we should be committed to the welfare of society, welfare of profession, achieve excellence in whatever you do, and that is where the basic human values and impartiality, objectivity, and intellectual integrity. Even while publishing, we have some ethics. So human values and ethics are very, we call as professional ethics. They are very important for us to see that we do the right things at the right time and the right place. That is very, very important. So I would like to just thank Professor Sanyal. I did not know that so much thing has been done, but I just when he invited, I said, okay, I'll come. After seeing this, I am very happy that I have come. So all of us as faculty should always think of right conduct, be peace and mind. If you are agitated or if you are not happy, the students will get affected. Always encourage truth, good practice among the students. So that many times you see students tend to cheat or do some other things in the practical. So we try to inculcate good things in the students. That is something we have responsibility. To teach them good manners, the way you address your faculty, the way you talk to colleagues. I have seen situations where colleagues fight virtually with each other. That is not the way. We are in a society, we are in a civilized society. We need to live harmoniously with each other, and that is very important. And we should have patience. Many times we are impatient, and because of our impatience, many things go wrong. So this is something I think this way towards happiness. The word happiness will teach you. Patience will teach you how to be happy and all that. And of course, we should be truthful to everybody, truthful to our profession, truthful to your family, truthful to your friends, truthful to our institution, so that whatever we do is right, so that we don't cheat the system. And then
we should concentrate on many things. We have a responsibility that also grow academically. I know the competition is tough. Many of you are temporary. Some of you are actually waiting for promotion. Yes, but all this happens over a period of time. Nothing to get disappointed. Results are not going to fall. Even if this goes that we are going this way. So please do it. And honesty is the key. Without honesty, I always believe that sincerity, hard work and honesty, this is something, whatever you do, wherever you are, it will help you to grow fast. And my life is my own example. I have almost served writers of 4 to 5 issues, even though some are in charge. Actually, I was director of NIDAP, I was director of School of Planning, Architecture, Vijayawada, I was the director of NID Warangal, I am director of NID Raipur now. So all this definitely will come, everybody will get an opportunity, but you need to be patient, you need to be hardworking, you need to be sincere. Don't see the results. Every time whatever you think about the good thing that you are doing to society, that is very, very important. And then responsibility is very important, positive thoughts are very important, fairness in whatever you do, and trust. You should trust your colleagues, trust your administration, trust your and then perseverance. Try to be, don't just leave it as it is. Sometimes people just try to leave it. Be perseverance and definitely you will achieve it. And then self-discipline is very, very important. Reflection is very important. To be courageous, you should be contented in whatever you do. If you don't have contentment, then you will feel very unhappy. And then you should be also talking about justice. Be compassionate. See, you should not trouble our students. Students are coming from different backgrounds. Each one has a different family. So we should think objectively how to help each other, how to help the students. Many times, as a teacher, I have seen where you try to trouble the student unnecessarily. Not here, something. So we should be, do all this, and I'm sure with all this will definitely improve our living together and making everybody happy. Again, once again, thank Sawada for coming out with a wonderful lecture series, and also like to thank Samir Vajpayee for his experiences and how he has been instrumental in making NIT Raipur as a happening place for this value education. And Dr. Sanyal has been very happy and very kind to invite me here. Thank you. Thank you. So, like sir said, a healthy mind and healthy body is very much essential so that we can create positivity around us as well as the peoples who are around us. So with this one, we like to request Dr. Sanyal, HOD Mechanical Engineering, to kindly give the vote of thanks. Thank you, Kalanga. Good afternoon, respected Director Sir, Samir Sir, HOD Humanities, he or she, whoever is head of the department, they always, assist us in lending us. Dr. Hina Chawla and Dr. Mutiwari, even Jaya Madam has given us time. Thank you all the staff members who have attended this workshop. I mean, you guys are helping me in conducting this because अगर आप attend नहीं करेंगे तो मैं किसी धन्यवाद के बाद शब्द जो है वो उचित अर्थ के रूप में ही पहुँचे आप तक, ये बहुत आवश्यक है और इसलिए आपका इस प्रकार के वर्कशॉप्स को अटेंड करना जो है बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा जब हम चर्चा करने जाते हैं तो एक पट पे आपको सारी चीज़ों का समाधान जो है वो दिखता है इसमें। जैसा हिना मैडम ने रिक्वेस्ट किया है, वाजपेयी सर ने रिक्वेस्ट किया है, आप लोगों से भी अनुरोध है कि जब आपको समय मिले हिना मैडम बताएंगे कि कब इस प्रकार के शिविर होते हैं, तो वो पूरे 7 दिन का शिविर आप जो है आप अटेंड करिए और इसका लाभ उठाइए।
आप लाभान्वित होंगे ही, ये बिल्कुल। इसमें जब स्टार्ट करते हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है, मतलब जब प्रबोधक कहते हैं हम, हिना मैडम जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे प्रबोधक जो इस चर्चा को आपके सामने में रखते हैं, तो हम जो हमारे पुराने स्लेट में जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, उसके साथ में हम प्रबोधक की हर बात को जो है काटने का प्रयास करते हैं। नहीं, गलत है, जो आप कह रहे हो गलत है। तो पहला दिन जो है वो खाली इसी उसमें निकलता है, और इनकी ओर से ये रहता है कि आप पहले जानिए चीज़ों को, फिर मानिएगा, और आप जितना प्रश्न कर सकते हैं वो प्रश्न करिए। तो जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ला पा रहा हूँ, इनके कारण जो है वो बहुत छोटा ग्लिम्स है, बहुत छोटा है। तो जब तक आप इस शिविर को पूरा अटेंड नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको इसको मतलब एक पट पे पूरी चीज़ें आपको दिखेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि जब भी आपको मौका मिले, बहुत दूर है नहीं यहाँ से 22 किलोमीटर के उसमें ही एक और VIP के पास में भी स्कूल जो है, बच्चों के लिए स्कूल जो है वो ये चला रहे हैं संस्था की ओर से, तो वहाँ भी शिविर का आयोजन होता है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। मेरी जिम्मेदारी ग्रुप में, चूँकि मैंने शिविर अटेंड किया हुआ है, तो मैं हर समय वाजपेयी साहब और ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट और हिना मैडम वगैरह के साथ में कनेक्टेड रहता ही हूँ। हिना मैडम बीच बीच में मुझसे आके बिल्कुल पॉइंट आउट करती रहती है कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, और मुझे मार्गदर्शन जब जरूरत पड़ती है तो मैं देता रहता हूँ। तो इस सब चीज़ों के साथ में जुड़े होने के कारण ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँ। तो वो मैं कंटिन्यू करूँगा जब तक मैं वाराध्यक्ष के रूप में हूँ, या अगर अलग से भी रहूँगा तब भी। और निदेशक महोदय से मैं अनुमति लेके इन चीज़ों को जो आगे और बढ़ाता हूँ। पुनः आप सभी का धन्यवाद। HOD ह्यूमैनिटीज़ प्रोफेसर वाजपेयी, हिना मैडम, थैंक यू सर। Thank you sir for your kind words. Kalinga has been